Now the class is recording and sharing with you whiteboard. You will remember that in today's class what we are going to take, we are going to take Composed Upon Westminster Bridge. There is a poem and the name of the poem is Composed Upon Westminster Bridge. Composed Upon Westminster Bridge. This is the title, upon composed upon Westminster Westminster Bridge. So this is the name of the poem, Composed Upon Westminster Bridge. एंड जो पहला पॉइंट है इसके बारे में कि ये जो पोयम है इट वाज जस्ट कंपोज्ड इन 1803. फर्स्ट पॉइंट, इट वाज कंपोज्ड in 1803 when poet was going from London to Dover. When poet was going from London to Dover, एक जगह का नाम है. So remember that we are talking about a sonnet of this man, and the name of that sonnet is Composed Upon Westminster Bridge. It's a sonnet, remember that. And this sonnet was written in 1803 when the poet was going from London to Dover. एक जगह वहां पे वो जाते हैं. Then just he has what the beauty, what he saw, he has presented that thing. He has presented those pictures when he was on journey from London to Dar, and the time was the morning. London to Dar in morning. In morning. This is the point which you have to remember. Second point, in this poem he has glorified London. In this sonnet, SONNET, in this sonnet he has glorified, GLORIFIED, glorified the beauty of London. उन्होंने जो है क्या किया है, लंदन की ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया. ही हैज ग्लोरीफाइड द ब्यूटी ऑफ लंदन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. इन दिस सोनेट ही हैज ग्लोरीफाइड द ब्यूटी ऑफ लंदन. ब्यूटी ऑफ लंदन को उन्होंने क्या किया है, ग्लोरीफाई किया हुआ है. एंड थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ब्यूटी ऑफ ग्लोरी, जो लंदन को ग्लोरीफाई किया है, उन्होंने बताया कि जो लंदन है उसका जो तुलना करते हैं, वो कहते हैं कि लंदन इज लाइक, हाउ लंदन इज लाइक अ न्यूली वेडेड वुमेन. In this sonnet he has glorified the beauty of London and compares it with newly wedded woman. The NEWLY, newly wedded woman. So this is very important. This particular point is very important कि he compares it with newly wedded woman. This portion you have to remember. In which poem? You will come to know he has just compared London with a newly wedded woman, and in the poem Composed Upon Westminster Bridge, he wrote this poem in 1803
when he was on a tour, या when he was going from London to Dar. एंड इसके अलावा आप देखेंगे इन रेस्ट ऑफ द पोयम उन्होंने लंदन को ज्यादातर क्रिटिसाइज किया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज व्हाट. नेक्स्ट पॉइंट, it is a sonnet, sonnet, based on, it is a sonnet based on Petrarchan model. Petrarchan model, Petrarchan model have octave and sestet. Having octave and sestet, you will come to know कि यह एक वो sonnet है जो based on Petrarchan model जिसमें क्या है octave और sestet, octave and sestet. एंड राइम पैटर्न भी वही बात होगी कि इसका राइम पैटर्न. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, द राइम स्कीम इज ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी ई सी डी, समटाइम्स सी डी सी सी डी सी. तो जब भी पेट्रोचन मॉडल की बात आएगी तो पेट्रोचन मॉडल में ऑलवेज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड टू थिंग्स. वन इज की राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी ई सी डी, समटाइम्स सी डी सी, एंड द डिवीजन ऑफ सोनेट इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 8 लाइन स्टैंजा एंड 6 लाइन स्टैंजा, उसके डिवीजन में ध्यान में रखना है. और this is only the poem where he has just glorified the beauty of London. Otherwise, in most of the poem, उन्होंने लंदन को क्रिटिसाइज ही किया हुआ है. तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है. इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा. दिस इज दिस इज ओनली द sonnet in which he glorifies London. Glorifies. He glorifies London. And in rest of his poems, and in rest of his poems, he criticizes it. Criticizes, criticizes it. जो रेस्ट ऑफ पोयम्स है उसमें उन्होंने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया हुआ. यही एक ऐसी पोयम है जिसमें वो उसको क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं. तो यू विल कम टू नो कि which he glorifies London, and in rest of his poems he criticizes it. इवन उनकी एक पोयम जो द प्रिल्यूड है, द प्रिल्यूड में उन्होंने लंदन को जो वर्ड यूज किया हुआ है, बैरन स्टोनी डिजर्ट, यह एक वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है. इ- दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि इन हिज सेमी इन हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल फिकल epic, he compares London
He compares London as barren, BARREN, barren स्टोनी डेजर्ट से, STONY, स्टोनी डेजर्ट, DESERT। ये चीज आपको ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जो है, ये पोर्शन की उन्होंने द प्रील्यूड में ऑटोबायोग्राफिकल एपिक इन ही सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक का मतलब द प्रील्यूड में उन्होंने लंदन को जो तुलना किया हुआ है, वह क्या है कि बैरन स्टोनी डेजर्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एक कि कैसे उन्होंने और पोयम में उसको क्रिटिसाइज किया है। इफ द क्वेश्चन कम्स कि इन विच ही admires, then that is only one sonnet, that is what, that is composed upon Westminster Bridge, उसमें उन्होंने उसको किया हुआ है। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन सम लाइंस, इसका कुछ लाइंस मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस में आप देखेंगे कि अ, एक लाइन है, द सिटी, पहला पैसेज में बात कर रहा हूँ, द सिटी नाउ डॉथ, द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट, लाइक अ गारमेंट, द सिटी नाउ doth like a garment, wear, WEAR, wear the beauty of the morning, the beauty of the morning। ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वह क्या चीज है, द सिटी, यहाँ पे जो सिटी वर्ड है किसकी बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर, द सिटी नाउ डाथ लाइक अ गारमेंट। जो सिटी है ऐसा लगता है जैसे यह एक खूबसूरत कपड़े में लिपटी हुई है। वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, और जो मॉर्निंग की खूबसूरती है उसको अपने में समेटे हुए है। तो यह उनका एक वो था कि ही सा द ब्यूटी ऑफ लंदन इन मॉर्निंग व्हेन ही वाज ऑन टूर फ्रॉम, व्हेन ही वाज फ्रॉम लंदन टू, एंड इन मॉर्निंग टाइम ही सा दैट ब्यूटी। तो उसका वो करते हैं, दैट ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने यूज किया है कि नेवर आई सा, ये उसी का लाइन है, मैं डबल इन्वर्टेड कामा में कर रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट है, NEVER, नेवर आई सा, नेवर आई सा, नेवर फेल्ट, ना तो मैंने पहले कभी लंदन को ऐसा देखा था, ना ही महसूस किया है। नेवर आई सा, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, अ काम सो डीप, कि लंदन में इतनी शांति रही हो, अ काम सो डीप, नेवर आई सा, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, द रिवर ग्लिडिथ, द रिवर, द रिवर ग्लाइड, GLIDETH, द रिवर glides at his own sweet will, at his own sweet will। So you will come to know ये next, dear God, डियर गॉड, गॉड स्मॉल में है, वो एंजिल को इंडिकेट किए हैं, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep, द वेरी हाउसेस सीम asleep। यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो ये बताया कि डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम्स asleep,
So in morning time when he was on tour, yeah, when he was going from London to Dar, it was a morning time, and he saw कि most of the people were in, they were sleeping, they were in their houses. तो ऐसा लगता है कि सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले उन्होंने, हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ ने जब भी लंदन को देखा हो, शाम के समय देखा हो या दोपहर में जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रही हो, उन्होंने वर्ड यूज किया ओवर पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड सिटी। तो सच अ थिंग यू विल कम टू नो। और लेटर ऑन ये बात टी एस एलियट की भी पोयम में मिलता है। तो वर्ड्सवर्थ का जो जमाना था वहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक तरह का शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता, तो लंदन जैसा सिटी जो था वह overcrowded, overpopulated, all these things you see, seem asleep. And the last line is, and all that mighty heart, and all that mighty heart is lying still, is lying still. So you will come to know, and all that mighty heart is lying still. So here is what, here the important thing is, again I would like to repeat those lines. The city, this particular city, you have to remember, this refers to what? It refers to London. Now doth like a garment, garment. Now doth, now is covered, yeah, now is, just it is covered like a newly wedded woman. Wear the beauty of the morning. He also gives you time, time का reference उन्होंने बताया कि जब वो मॉर्निंग में जा रहे हैं तब जो है, never I saw, means before it he didn't find such a beauty which he beholds in morning when he was on tour from from London to Dover. The beauty which he saw, never he found. And ही सेज नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, इतनी शांति मैंने तो कभी महसूस ही नहीं की कि लंदन में भी इतनी शांति मिलेगी या इस तरह की चीजें। द रिवर ग्लाइड्स एट हिज ओन ओन स्वीट विल, जो रिवर है वो अपना खुद, उस वहां पे एक अलग शांति, वहां पे ग्लाइडेड है, वो अपना खुद एकदम से शांत। इट सीम्स दैट कि देयर इज नो नॉइज एट ऑल, नो हमड्रम, नो chaotic सिचुएशन, द पीपल आर नॉट जस्ट कि पैसे के पीछे या मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे दे आर नॉट जस्ट भाग रहे हैं, या दे आर गोइंग हाइदर एंड दाइदर। सो यू विल कम टू इवन द हाउसेस सीम asleep, हाउसेस सीम asleep, कि एक बहुत ज्यादा शांति, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। इवन इन द हार्ट यू विल कम टू नो कि दे देर इज ब्यूटी, कॉम, ऑल दिस थिंग ही हैज हियर प्रेजेंटेड। लेकिन जो नोट करके आपको बताए थे कि इन अनदर पोयम ही हैज क्रिटिसाइज्ड, और जितनी भी सारी पोयम अभी मैंने आपको एक जो पढ़ाया था सोनेट था लंदन करके, या एक जो मैंने आपको पढ़ाया है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उन सब में आप देखेंगे कि ही हैज, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है, कैसे जो है किस तरह से। एंड नेक्स्ट सोनेट विच आई वांट टू टेल यू दैट इज व्हाट, एक नेक्स्ट पोएम लेंगे, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। देयर इज अनदर पोएम, द नेम ऑफ दैट पोएम इज, इट इज ब्यूटियस, Beauteous, इट इज ब्यूटियस इवनिंग, EVENING, इवनिंग काम एंड फ्री, काम एंड फ्री। इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये भी एक इम्पोर्टेंट उनका अपना पोएम है। वी विल कवर इट, नोट डाउन दिस, जस्ट कमिंग, नोट
So you will come to know कि this is another sonnet that is important. It is a beauteous evening, calm and free. ये जो सोनेट है उसमें ये भी पेट्रोर्चन मॉडल पर है। पहला चीज तो फाइंड की फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ सोनेट बेस्ड ऑन पेट्रोर्चन मॉडल। पेट्रोर्चन मॉडल, यह एक ऐसा सोनेट है जो पेट्रोर्चन मॉडल पर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग you will come to know, it was composed, second thing it was composed in 1802, it was composed in 1802, 02 near Calais, Calais in France। वो फ्रांस में जो है कैलाइस एक जगह है, एक बीच है, वहां पे वो गए हुए थे, तब उन्होंने इसको लिखा हुआ था। और जो पोएट है वहां पे वो ये बताता है कि ही वॉज वॉकिंग देयर एंड वहीं बीच पर ही विद हिम देयर वाज हिज डॉटर कैरोलिन एंड his beloved. I would means I would not like to use the word wife, but beloved, Enid Vallon. The poet was, next point, that is the third point. The poet was walking up and down। फ्रांस में कैलास नाम का एक जगह है जहां पर जो एक बीच है, समुद्री का मतलब कोस्टल एरिया है। वहां पे पोएट जो है क्या करता है कि दैट द पोएट वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, उस बीच पर वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन ऑन द बीच, BEACH, in the company, in the company of Caroline and Enid Vallon, ANNETTE VALLON। सो यू विल कम टू नो उनकी कंपनी में वो टहल रहे थे, और इट वाज द इवनिंग टाइम एंड द सन इज अबाउट टू सेट। उस विजन को या उस पॉइंट को उन्होंने लिया, उस ब्यूटी को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। सो व्हाट आई वांट टू से कि दिस पार्टिकुलर प्लेस यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कैलास, CALAIS। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन फ्रांस। इट इज व्हाट? इट्स अ कोस्टल एरिया इन फ्रांस। And the poet was walking there, the poet was walking up and down, इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अप एंड डाउन। और कौन कौन है उनकी? देर वॉज अ, इट इज सेड दैट की his natural daughter Caroline and beloved Enid Vallon was also there, they were also there, and it's the evening time। Next point, that is I think a fourth point, it's the evening time, evening time, the poet has captured, the poet has captured the beauty of setting sun, the beauty of setting sun।
जो पोएट है उसने कैप्चर किया हुआ, किसको कैप्चर किया? द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन को उन्होंने कैप्चर किया हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। इट्स द इवनिंग टाइम द पोएट हैज कैप्चर्ड द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन। वहां पे उस ब्यूटी को कि हाउ डज Calais or coastal area of France, how does it appear? What type of beauty they find? Because always if he is there, if he is standing somewhere, always he talks about the nature and natural objects, how the things appear in morning, in evening, in forenoon, afternoon, yeah, in noon. You will come to know कि इस तरह का चीज उन्होंने किया हुआ है। एक दो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। सीधे नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ। Listen, Listen. Listen, the mighty being is awake. The mighty being, Being. The mighty being is awake. Awake. Is the first line, and the second line, and doth with his eternal motion, and doth with his eternal motion, eternal motion make. And the third line, a sound like thunder, a sound like thunder, everlastingly. So these things you here get, या these points you get कि ultimately कि उन सब चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि and doth with his eternal motion make a sound like thunder everlasting. Listen, the mighty being is awake. So seeing that particular picture, he hears tells about what? He hears tells about God, that is ओमनीपोटेंट, omnipresent, इसीलिए उन्होंने कहा लिसन, ध्यान से सुनो। तो लिसन जो ध्यान से सुनो, इसका मतलब है कि समथिंग ही वाज टू टेल द, वहाँ का जो साउंड है, जो कोस्टल एरिया तो है ही है, तो सो मेनी टाइप ऑफ साउंड यू कैन जस्ट हियर देयर। तो द माइटी बीइंग इज अवेक and doth with his eternal motion make a sound like thunder everlastingly. These lines he uses. So you will come to know कि it's also a beautiful poem, जहाँ पे उन्होंने उसको लेके बात किया हुआ है। Now there is another poem which I would like to talk. The next one is the next one is She was a phantom of delight. The next poem is She was a phantom of delight. She was a phantom of delight. You will come to know it's the next poem जिस पे हमें बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट कि it is it is counted as a love poem. It is counted as love poem. COUNTED. It is counted as love poem. It is counted as love poem, and you will come to know कि उन्होंने इसमें किसके बारे में बात किया हुआ है। He talked about his wife. Do you remember Mary Hutchinson? तो एक चीज ध्यान में रखना, इट इज काउंटेड एज लव पोएम।
he talked about his wife Mary Hutchinson. Mary Hutchinson. Hutchinson. So this point you have to remember. This point, Mary Hutchinson. And second important point, it's a love poem. These 2 points you have to remember. It's a love poem. He talked about his wife Mary Hutchinson. Next point, that is the second point. The present poem is the development of is the develop development is the development of Hutchinson's personality. The present poem is the development of Hutchinson's personality. Hchinso Hutchinson's personality. जो प्रेजेंट पोयम है वह हचिंसंस की पर्सनालिटी को लेकर के बात करता है और उसमें कई तरह से उनको जो है एज अ चाइल्ड और एज अ मेड एंड एज अ वाइफ हचिंसंस पर्सनालिटी एज अ चाइल्ड CHIL एज अ चाइल्ड कामा एज अ मेड MAID maid and as a wife. तो यू विल कम टू नो कि उसमें उनके विभिन्न रूप को बचपन से लेकर के परस्पर की वाइफ होने तक का एक जिक्र है। और इसके अलावा यू विल कम टू नो कि ये सबका सब चीजें उन्होंने इसमें किया हुआ है। सेकेंड थिंग कि एक दो लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट आई वुड लाइक टू यूज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। उनमें से बस आपको एक लाइन यहाँ पे मैं लिखूंगा, दैट इज द थर्ड पॉइंट। आई सा हर अपॉन नियरर व्यू। NEARER नियरर व्यू। A spirit yet a woman too. A spirit, a spirit, SPIRIT, yet a woman, yet a woman too. TOO आगे कर लेना है, स्पेस नहीं है। बस यही लाइन आपको ध्यान में रखना। I saw her upon nearer view, a spirit yet a woman too. तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने उसको कहा कि वो एक स्पिरिट भी अपनी रही है और एक वुमन के रूप में भी रही है। सो उनकी जर्नी और फैंटम जो है वह तो ऑलरेडी स्पिरिट के लिए ही यूज किया जाता है। टाइटल भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। तो यू विल कम टू नो कि ही हैज प्रेजेंटेड अबाउट मेरी हचिंसन इन दिस वे।
तो टुडे आई हैव टेकन इन सब चीजों को आई हैव टेकन एंड जस्ट आई विल टेक वन मोर पोयम। आई विल टेक वन मोर पोयम। The next poem which I will take, that is द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कुछ लाइन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अलग से कोई पोयम नहीं था, वो उसी का कुछ लाइन है, क्या नाम है, द प्रील्यूड का। तो उसका जो है आई विल टेक, उसका नाम है पोयम का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। REVOLUTION, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पोयम का नाम है। और इट्स द पार्ट ऑफ प्रील्यूड। एक चीज ध्यान में रखना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। द प्रील्यूड बुक सेकंड, ये प्रील्यूड का पार्ट है बुक सेकंड का। और कहाँ से कहाँ तक का, 105 से 144 तक, लाइन नंबर 105 से 144 इज द पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। लाइन नंबर 105 से लेकर 144 तक। इट वाज रिटन, ये चीज ध्यान में रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रील्यूड बुक सेकंड का 105 से 144, रिटन इन 1804। क्योंकि 1805 पे पूरी किताब आती है, तो हो सकता है कि ये चीज रहा हो कि 1805 ईस्वी में इसको लिखा गया। और इसमें केवल और केवल क्या चीज किया गया है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो उस जो इंथुसिज्म था, उसको जो है कैप्चर करने की, या उसको जो है उसको लेकर के बात कही गई है। तो रिमेंबर दैट की रिटन इन 1804, ये सेकेंड पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन इट द पोएट टेल्स अबाउट द इंथुसी enthusiasm of the supporter of the French Revolution, supporters of the French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब ब्रोकन आउट हुआ था, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये जो पोयम है, एक तरह का एविडेंस है कि उस समय के लोगों में कितना उत्साह था इस चीज को लेकर के। तो एक पॉइंट आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट occurred या दैट broken out in 1789, and it tells about what, it tells about the enthusiasm of the supporters of the French Revolution। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो सपोर्टर थे, यह उनके इंथुसिज्म के बारे में बात करता है। तो यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि द स्लोगन, SLOGAN, द स्लोगन ऑफ द revolution was, the slogan of the revolution was liberty, equality and fraternity। जो स्लोगन था वो क्या था, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्लोगन ऑफ द रिवॉल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी
एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जस्ट आई वांट टू टेल यू, उसका एक इम्पोर्टेंट लाइंस है जो यहाँ पे मैं नोट करके आपको लिखवा दे रहा हूँ। नोट करके उस इम्पोर्टेंट लाइंस को, ये कई बार पूछा जा चुका है। BLISS, ब्लिस was it in bliss was it in dawn to be alive, ये लाइन पूछी जा चुकी है। dawn to be alive, bliss was it in that dawn to be alive, पहली लाइन। सेकंड लाइन थी but to be young was very heaven। दूसरा, the place where in the end, the place where in the end we find our happiness or not at। So you will come to know कि एक चीज है कि I would like to highlight it कि ये लाइन कई बार आया हुआ। bliss was, मतलब लोग बहुत ज्यादा, when the French relation was broken out all over the side, the people welcomed it with open heart and he said कि bliss was, it was like it was, मतलब एकदम इतना joy था लोगों में, इतना enthusiasm था कि पूछिए मत। This is why to show that enthusiasm he has used the word bliss was it in to show that enthusiasm कि how much the people supported, the people came out, means from their houses on road, just clapped, welcomed this revolution. So he uses the word bliss was it in dawn to be alive, और एक यह एक नई सुबह जैसा था। dawn to be alive, उस दिन को देखना अपने में बहुत एक नई जिंदगी पाने जैसा था कि मैं गवाह रहा हूं कि मैंने उस दिन को देखा। that dawn to be alive, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। और उसको देख करके ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों में इतना उत्साह था कि लोग सातवें आसमान पे पहुंच गए थे कि देर ऑल ओवर द साइड देयर वाज bliss, but to be young was very, the place, the place where in the end we find our happiness or not at all। So you will come to know these points। So these things I have taken these poems, I will meet you in the evening।